بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع، 7واں سبق. اس سبق کے اندر بنیادی طور پر جو الفاظ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ 4 الفاظ ہیں. ان میں سے ہم پڑھ چکے ہیں کچھ، 2 پڑھ چکے ہیں اور 2 نئے ہیں. ہم نے پڑھا حاذا. حاذا کس کے لیے ہوتا ہے؟ حاذا مذکر کے لیے ہوتا ہے. اور حاذی مؤنث کے لیے. حاذا مانے یہ، حاذی مانے حاذی مانے یہ. حاذا مذکر کے لیے، حاذی مؤنث کے لیے مانا یہ. ذالکا وہ اور تلکا وہ، دونوں کے معنی وہ، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے. ان کو کہتے ہیں اسماء اشارہ. کیا کہتے ہیں؟ اسماء اشارہ. یعنی ان کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ان کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ قریب کے لیے، حاذا حاذی یہ قریب کے لیے، اور ذالکا تلکا بعید دور کے لیے. ذالکا اور تلکا دور کے لیے. چنانچہ اس سبق میں انہی 4 الفاظ سے بحث کی گئی ہے اور انہی کا استعمال سکھلایا گیا ہے. کون پڑھیں گے سبق؟ پڑھیں. من حاذہ وہ کون ہے؟ من حاذہ یہ کون؟ یہ کون ہے؟ یہ کون؟ حاذہ آمنۃ یہ آمنہ ہے. ومن تلکا اور وہ کون ہے؟ تلکا فاطمۃ وہ فاطمہ ہے. حاذہ طبیبۃ و تلکا طبیبۃ. آپ نے کیوں کہا؟ حاذہ طبیبتی. ہاں، حاذہ طبیبتی کیوں طبیبتی؟ مؤنث ہے. وہ نہیں، مؤنث مؤنث زبر زیر کا مؤنث سے تعلق نہیں. حاذہ طبیبۃ ہاں؟ بولتا ہے، بولتا بولتا ہے تو کیا ہوا؟ حاذہ طبیبۃ آئے گا، بولتا ہے. طبیبۃ اس پہ زیر نہیں آتا ہے مؤنث پہ. طبیبتن زیر آتی ہے. طبیبتن. میں نے کہا تھا کہ تنوین سے آپ کیوں رک رہے ہیں؟ جب تک کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے آپ تنوین سے نہ رکیں. اور تنوین سے روکنے والی چیز کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ الف لام. الف لام. الف لام. تنوین سے روکنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ الف لام. اور اس کا مضاف ہونا. حاذہ طبیبۃ و تلکا ممرضۃ. وہ تلکا ممرضۃ کیا معنی ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ مریض ہے. اور وہ مریض ہے نہیں، نرس ہے. ممرضہ نرس. نرس. مریضہ مانے مریض، ممرضہ نرس. تو حاذہ طبیبۃ و تلکا ممرضۃ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے. آگے. حاذہ من الہند و تلکا من الیابانی. حاذہ من الہند و تلکا من الیابانی کیا معنی ہے؟ یہ ہندوستان سے ہے اور وہ جاپان سے ہے. یہ ہندوستان سے اور وہ جاپان سے. آپ پڑھیے. حاذہ طویلۃ و تلکا قصیرۃ کیا معنی ہے؟ لمبی لمبی. طویلۃ لمبی ہے، اور تلکا قصیرۃ اور وہ پست قد. چھوٹی ہے، پست قد ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا حاذہ اور تلکا پڑھا، جتنے جملے ہم نے پڑھے اس میں حاذہ اور تلکا کا استعمال ہوا ہے. نیچے حاذا اور ذالکا کا استعمال ہوگا. من حاذا یہ کون ہے؟ حاذا حامد یہ حامد ہے. ہاں، ومن ذالک. من نہیں، من حرف جر ہے. من معنی سے جو حرف جر ہے. من. ومن ذالکا اور وہ کون ہے؟ ذالکا علی. علی. ہاں، علی. ذالکا علی وہ علی ہے. اور کون پڑھیں گے؟ پڑھیں آپ. اتل کا دجاجتن
तिल का, हाँ क्या वो मुर्गी है? नहीं वो बतख है। आगे एक और पढ़े, माँ तिल का। माँ माने क्या, पढ़ चुके हैं। अगर सवाल के लिए माँ का इस्तेमाल होता है। माँ तिल का वो क्या है? तिल का बैदतुन वो अंडा है। आप पढ़ें। हादिही सय्यारतु, हादिही सय्यारतु मुदर्रिसु, मिलाकर पढ़ें। हादिही सय्यारतु मुदर्रिसी हाँ वतिल्का सय्यारतुल मुदीरी। मुदीरी, हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिल्का सय्यारतुल मुदीरी। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की मिसाल गुजरी है, काफ़ी मिसालें गुजरी हैं, अलग से भी समझाया गया और किताब में अलग से यहाँ पर पेज नंबर 32 पर बतलाया गया। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह सय्यारतुल मुदर्रिस, कलम हामिदिन, हामिद की कलम। तो क्या है माना? हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी व तिल्का सय्यारतुल मुदीरी। ये मुदर्रिस की कार है और वो मुदीर की कार है। हाँ ये मुदर्रिस की कार है, गाड़ी है, और वो मुदीर की गाड़ी है। आगे असाअतु अब्बास, अब्बास हादी, असाअतु अब्बासिन हादी, हाँ असाअतु अब्बासिन हाज़िही। इसके माना नहीं आ रहा। असाअत आ माने हमजा जो है उसके माने क्या? सवालिया। क्या है? अब्बास की घड़ी। हाँ क्या ये अब्बास की घड़ी है? असाअतु अब्बासिन हाज़िही, क्या ये अब्बास की घड़ी है? ला हादिही साअतु हामिदिन, तिल्का साअतु अब्बासिन, तिल्का तिल्का साअत की अब्बासिन। साअतु मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, अभी मैंने बयान किया मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती है। एक तो अलिफ लाम रुकावट है और दूसरी मुज़ाफ होना किसी लफ्ज का, कोई लफ्ज अगर मुज़ाफ है तो उस पर तनवीन नहीं आएगी। क्या माना हुआ? ला हाज़िही साअतु हामिदिन तिल्का साअतु अब्बासिन, क्या माना हुआ? नहीं, ये हामिद की घड़ी है और वो अब्बास की। नहीं, यह हामिद की घड़ी और वो अब्बास की घड़ी है। आप पढ़े आगे, आखिरी जुमला। फिर से पढ़े, ज़ालिका ज़ालिका दीकुन, वतिल्का दजाजतुन, ज़ालिका दीकुन वतिल्का दजाजतुन, क्या माना हुए? ज़ालिका, हाँ तिल्का, तिल्का माने दोनों के माने वो। हाजा हाज़िही ये, ज़ालिका तिल्का वो, ज़ालिका दीकुन वो मुर्गा है, व तिल्का दजाजतुन और वो मुर्गी है। तमारीन मशक़े, कहते हैं इक़रा वक्तुब, पढ़ और लिख। कौन पढ़ेगा? किसके पास किताब है? पढ़े आप। हाज़िही मदरसतुन व तिल्का जामिअतुन, हाज़िही मदरसतुन व तिल्का जामिअतुन, क्या माना है? ये मदरसा है और वो जामिया। ये मदरसा और वो जामिया यानी यूनिवर्सिटी है। ज़ालिका हिमारुन व तिल्का बकरतुन, ज़ालिका हिमारुन व तिल्का बकरतुन, सब पढ़िए तो। ज़ालिका हिमारुन व तिल्का बकरतुन, ज़ालिका हिमारुन व तिल्का बकरतुन, क्या माना है? वो गधा है और वो गाय है। बकरा यानी गाय, वो गधा है और वो गाय है।
तीसरा जुमला पढ़ें, पढ़े आप ही। ज़ालिका मस्जिदुन ला तिलका मदरसा। अज़ालिका मस्जिदुन ला तिलका मदरसतुन, पढ़ें। अज़ालिका मस्जिदुन ला तिलका मदरसतुन। अज़ालिका मस्जिदुन ला तिलका मदरसतुन। क्या माना है? क्या ये मस्जिद है? ज़ालिका हाज़ा फर्श, क्या वो मस्जिद है? अज़ालिका मस्जिदुन, क्या वो मस्जिद है? ला नहीं, तिलका मदरसतुन, वो मदरसा है। चौथा जुमला आप पढ़ें। हाज़ा जमालु तिलका हाज़ा जमालुन जमालुन, जमालुन तिलका नाक़तुन। व तिलका नाक़तुन, क्या है? हाज़ा जमालुन व तिलका नाक़तुन, पढ़ें। हाज़ा जमालुन व तिलका नाक़तुन। हाज़ा जमालुन व तिलका नाक़तुन। हाज़ा जमालुन व तिलका नाक़तुन। क्या माना है? वो हाज़ा जमालुन, ये हाँ, जमील माने खूबसूरत, जमल माने ऊंट, ये ऊंट है। और वतिल का नाकतुन, और वो ऊंटनी है। जमल माने ऊंट, नाका माने ऊंटनी। पांचवा जुमला पढ़े, हाज़ा मज़हब देख के पढ़े। हाज़िही मदरसतुन तिलका तलीबुन। हाज़िही मदरसतुन व तिलका तालिबतुन, पढ़े। हाज़िही मदरसतुन व तिलका तालिबतुन। हाज़िही मदरसतुन व तिलका तालिबतुन। हाज़िही मदरसतुन व तिलका तालिबतुन। क्या माना है? हाज़िही मदरसतुन, ये मदरसा है। व तिलका तालिबतुन, और वो तालिबा है। तालिबा। छठा जुमला आप पढ़े। हाज़ा कल्बुन वज़ालिका क़ित्तुन, पढ़े। हाज़ा कल्बुन वज़ालिका क़ित्तुन। हाज़ा कल्बुन वज़ालिका क़ित्तुन। क्या माना है? हाज़ा कल्बुन, ये कुत्ता है। वज़ालिका क़ित्तुन, और वो बिल्ला है। सातवां जुमला पढ़े, आप पढ़े। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, पढ़े। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी। हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी व तिलका हदीक़तुत ताजिरी। क्या माना है? हाज़ा बैतुल मुअज़्ज़िनी, क्या माना है? ये मुअज़्ज़िन का घर है। व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, और वो ताजिर का बाग है। हदीक़ा माने बाग, और वो ताजिर का बाग है। दूसरी तमरीन मश्क में कहते हैं अशिर, यानी इशारा करें, इलल कलिमातिल आतिया, आने वाले अल्फाज की तरफ, बिस्म इशारतिन लिल बईद ज़ालिका तिलका, इसमें इशारा बईद से, इनकी तरफ इसमें इशारा बईद से इशारा करना है, ज़ालिका और तिलका से।
मुजक्कर के लिए जालिका लगाना है और मुअन्नस के लिए तिलका। जालिका माने वो, तिलका माने वो, हाजा माने हाज़िही माने हाज़िही माने जालिका माने वो। तो अब किसके साथ जालिका लगेगा, किसके साथ तिलका? जालिका और तिलका यही दोनों लगाने हैं हमें। तो जो मुअन्नस है उसके साथ तिलका, जो मुजक्कर है उसके साथ जालिका। चलें आप लगाएं नंबर 1 2 पर। तिलका उम्मुन, तिलका उम्मुन क्या माना है? वो माँ है। वो माँ है। चूंकि उम्मुन मुअन्नस है, उम्मुन मर्द नहीं हो सकता, इसलिए तिलका। जालिका अबुन क्या माना है? वो बाप है, वालिद है। जालिका अबुन, क्योंकि अबुन सिर्फ मुजक्कर हो सकता है, इसलिए जालिका। तीसरा भी पढ़े। तिलका कलमुन, कलमुन क्यों तिलका? मतलब कलमुन मुअन्नस है। मुअन्नस की कोई कई अलामतें मैंने इससे पहले बतलाई, कोई अलामत नजर आ रही है? मुअन्नस की 2 किस्में होती है, एक मुअन्नस लफ्जी, एक मुअन्नस समाई। लफ्जी में कोई अलामत दिखती है वहां पर, और समाई में सुनकर जाना जाता है, यानी अरबों से कि वो लोग इस लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मुअन्नस है। हाँ, बोलता आएगी तो मुअन्नस है, एक मुअन्नस की अलामत है। तो कलमुन क्या है? मुजक्कर मुअन्नस, मुअन्नस है क्या है? मुजक्कर है कलमुन, क्योंकि कोई अलामत तो है नहीं इसमें। कलमुन में मुअन्नस की कोई अलामत है नहीं, और अरबों से इसे मुअन्नस सुना भी नहीं गया, तो क्या लगाएंगे? जालिका कलमुन, जालिका कलमुन क्या माना है? वो कलम है। आप पढ़ें इसके बाद 4 नंबर। तिलका मिलअक़तुन, तिलका मिलअक़तुन, तिलका क्यों लगाया आपने? हाँ, बोलता है। मिलअक़तुन बोलता है, मुअन्नस है। क्या माना है तिलका मिलअक़तुन का? मिलअक़तुन पढ़ चुके हम। हाँ, वो चमचा है, वो चमचा है। आगे पढ़े 5वां। तिलका आइनुन, तिलका क्यों लगाए? आइनुन मुअन्नस समाई है, मुअन्नस समाई है। तिलका आइनुन क्या माने हुए? वो आंख है। 6ठे नंबर पे आप पढ़े। जालिका हजरुन, जालिका क्यों लगाए? पत्थर मुजक्कर है। एग्जाम में भी बाज बच्चे गलती ये करते हैं, हम पूछते हैं कि जालिका क्यों लगाए, तो आप ये कहेंगे कि हजरुन मुजक्कर है इसलिए जालिका लगाए। आप बोलेंगे पत्थर मुजक्कर है, पत्थर तो इधर है। वो लफ्ज, जिस लफ्ज के बारे में सवाल हो रहा, वो लफ्ज बताना होगा। आप उसका ट्रांसलेट करके बताएंगे तो नहीं चलेगा। अब उर्दू में मान लीजिए कलम को मुअन्नस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में तो मुजक्कर ही इस्तेमाल होगा। हाँ, तो क्या जालिका हजरुन क्या माना है? क्या माना है? वो पत्थर है। पूरा जुमला बयान करें, वो पत्थर है। आगे पढ़े 7 नंबर। तिलका कमीसुन, तिलका कमीसुन, तिलका क्यों लगाए? मुअन्नस समाई है। मुअन्नस लफ्जी और समाई लफ्जी में दिखता है और समाई में दिखता नहीं। हाँ, किससे सुना आपने? बगल वाले से। समाई मतलब सुनकर मालूम होता है कि ये मुअन्नस है, मेरे बगल वाले से सुन के मालूम हो गया मुअन्नस है। तो जो समाई है वो महदूद है, समाई जो है वो महदूद है, चंद ही अल्फाज है, ज्यादा नहीं है वो। हाँ, वो मारूफ है। जैसा कि हमने अभी आइनुन को पढ़ा, ये मुअन्नस समाई है।
ऐनुन को हमने पढ़ा, ये मुअन्नस समाई है। तो आम तौर पर अगर कोई जाहिरी अलामत नहीं दिख रही है, जाहिरी अलामत मुअन्नस की नहीं दिख रही है, तो आप उसको मुज़क्कर पढ़ें, आप उसको मुज़क्कर पढ़ें। तो क्या पढ़ेंगे? ज़ालिका कमीसुन, ज़ालिका कमीसुन, क्या माना हुए? वो कुर्ता है। इसके बाद 8 नंबर आप पढ़े। पढ़े, सही गलत जो भी है। किद्रुन, वो देखिए किद्र लिखा हुआ है और लिखने के साथ उस पर जो है लिखा है ना किद्रुन, दाल के ऊपर ऐसा बना हुआ है गोल, वो नुक्ता नहीं है, वो क्या है? सुकून है। क्या है? सुकून है, जज्म है वो, किद्रुन। तो क्या पढ़े? तिलका किद्रुन, तिलका किद्रुन। सही है, तिलका ही लगेगा, क्योंकि किद्रुन में कोई जाहिरी अलामत तो नहीं है, लेकिन ये मुअन्नस समाई है। अरबों ने इस लफ्ज को मुअन्नस इस्तेमाल किया। तिलका किद्रुन पीछे गुजर चुका है, मुअन्नस। तो क्या माना है इसका? तिलका किद्रुन माना क्या है इसका? क्या माना है? अरे पीछे गुजर चुका है, हांडी। क्या मतलब? हांडी, हांडी। हांडी, तिलका किद्रुन वो हांडी है। जो नए अल्फाज आ रहे हैं उनको याद करें, एक दिन में एक लफ्ज भी याद करें तो भी हफ्ते भर में 7-8 अल्फाज याद कर सकते हैं। समझ रहे? तिलका किद्रुन। उसके बाद 9वां नंबर है, आप बतलाएं। क्या पढ़े? ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है? तिलका नाफिज़ातुन, तिलका नाफिज़ातुन। तिलका लगाने की वजह क्या है? नाफिज़ातुन मुअन्नस है, क्योंकि ता अलामत है उसमें। क्या माने हुए तिलका नाफिज़ातुन? क्या माने हुए? नाफिज़ातुन पढ़ चुके हम पीछे। क्या माने हैं? खिड़की, वो खिड़की है, वो खिड़की है। चले 10 नंबर आप बतलाएं, पढ़े आप। तिलका बकरतुन, तिलका बकरतुन। बकरतुन के साथ तिलका क्यों लगाए? मुअन्नस है, गोलता अलामत नजर आ रही है। ये गोलता अलामत याद रखें। अगर गोलता अलामत नहीं है तो आप ज़ालिका मुज़क्कर लगाएं, गोलता अलामत है तो आप तिलका लगाएं। अभी के लिए, इस सतह तक के लिए ये बात है, वरना और भी दीगर अलामतें हैं। चले, तिलका बकरतुन क्या माना है? वो गाय है। 11 नंबर आप पढ़ें। कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ें। ज़ालिका मक्तबुन, क्या माने है? वो मेज है। ठीक है। 12 नंबर आप पढ़ें। तिलका नाक़तुन, तिलका नाक़तुन, गोलता लगी हुई है इसलिए तिलका। क्या माना है? वो ऊँटनी है। 13 नंबर पढ़ें। ज़ालिका मुहंदिसुन, क्या माने हैं? वो इंजीनियर है। 2 ही लफ्ज है, ज़ालिका तिलका, मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। इतना सोचना नहीं है। सामने देखिए गोलता है तो तिलका लगाइए, नहीं है तो ज़ालिका लगाइए। 1, 2, 3 लफ्ज जो मुअन्नस समाई के उनको जब्त कर लीजिए, याद कर लीजिए कि ये मुअन्नस समाई है। ठीक है, आगे पढ़िए। 14 नंबर आप पढ़ें। चले आप पढ़ें। ज़ालिका मुअज्जिनुन, बोलता नहीं इसलिए ज़ालिका लगा दिए। ज़ालिका मुअज्जिनुन, क्या माना है? वो मुअज्जिन है। ज़ालिका तिलका वो, ज़ालिका तिलका माना है वो मुअज्जिन है। 15 नंबर आप पढ़ें।
तिलका मुमर्रिज़तुन, तिलका मुमर्रिज़तुन बोलता है, इस वजह से तिलका क्या माने हैं? तिलका मुमर्रिज़तुन वो नर्स वो नर्स है। 16 नंबर आप पढ़े, उनको भी दे, पीछे मौका दे उनको भी। 16 नंबर आप पढ़े। ज़ालिका सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन बोलता नहीं इसलिए ज़ालिका लगाए, क्या माना है? वो चारपाई है। वो चारपाई है। आप पढ़े 17 नंबर। तिलका हदीहतुन, तिलका हदीक़तुन बोलता है, इस वजह से तिलका लगा दिए। तिलका हदीक़तुन क्या माना है? वो बाग है। 18 नंबर आप पढ़े, पढ़े आप। हाँ कौन सा पढ़ रहे हैं? 18 नंबर। तिलका तालिबतुन बोलता लगी हुई है, इसलिए तिलका। बड़ी अलामत अभी यहाँ तक के लिए, ता नहीं लगी है तो आप जालिका लगा दें, ता लगी है तो तिलका लगा दें। तो तिलका तालिबतुन क्या माना है? वो तालिबा है। आप पढ़ें। जालिका जमालुन, जमालुन क्या माना हुए? वो ऊंट है। 20 नंबर आप पढ़ें, कौन है साथ में? बत्ततुन, तिलका बत्ततुन, बत्ततुन तिलका क्यों? बोलता लगी हुई है। क्या माने हुए तिलका बत्ततुन के? वो बत्तख है। कहते हैं अल कलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज। हर सबक में इस तरीके से नए अल्फाज बयान किए जाते हैं। तो उन नए अल्फाज को, जैसे अब तक हुए 7वां सबक है ये, एक एक हफ्ते में आप याद करते जाए तो बआसानी याद कर लेंगे। उनमें से बहुत सारे अल्फाज पहले से मालूम होंगे, थोड़ी सी तवज्जो देंगे आप सारे अल्फाज याद कर लेंगे। बाकी जो अहम अल्फाज है, जैसे इसमें इशारा है हाजा, हाज़िही, तिलका, ज़ालिका, सवाल करने वाले जो अल्फाज आएंगे, हमजा, मा, मन, इस तरीके से जो अल्फाज आए उनको अलग से उनका माना लिख के एक एक मिसाल लिख लें, जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते मैंने बयान किया। तो अल कलिमातुल जदीदा नए अल्फाज। अल मुमर्रिज़ा क्या माने? नर्स। अल मुमर्रिज़ा तो नर्स। अल हदीक़तु बाग। अल बत्ततु बतख। अल मुअज़्ज़िनु मुअज़्ज़िन। अन्नाक़तु ऊँटनी। अल बैज़तु अंडा। फिर उसके बाद कहते अस्माउल इशारति लिल करीब, पहले हिस्से में पहले खाने में अस्माउल इशारा लिल करीब, करीब के लिए इसमें इशारा, करीब की तरफ इशारा करना है तो उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे। क्या है? हाजा मुहम्मदुन, क्या माने हुए? ये मोहम्मद है। मुज़क्कर के लिए हाजा, हाजा मुहम्मदुन, ये मोहम्मद है। हाज़िही आमिनतु, ये आमिना है, ये आमिना है। मुअन्नस के लिए अस्माउल इशारा लिल बैत, दूर की तरफ इशारा करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़ालिका हामिदुन, मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, ज़ालिका हामिदुन, वो हामिद है। तिलका ज़ैनबु, वो ज़ैनब है। तो इन चारों अल्फाज के इस्तेमाल का सही तरीका और माना मालूम होना चाहिए। आप चलते फिरते हाज़ा हामिदुन, ज़ालिका फला अलीयुन, इस तरीके से आप 2-4 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ हो कि हम तमाम लोगों को अरबी जुबान सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। हफ्ते में तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हम करीब